Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. As you all know, that today we are going to study about chapter number 3, features, problems and policies of agriculture. This is what we are going to discuss in our today's class. क्या कुछ है इस chapter में? Like as I already told you that it is somewhere related to the previous chapters. पुराने जो chapters हैं, first chapter जो है आपका, ये उसी से थोड़ा थोड़ा relate करता है. काफी सारी चीजें वहां से related हैं. So बहुत ज्यादा नया chapter नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि everything is taken from chapter number 1 only. So pay attention and let's see what are the things which are there in this chapter. Initially, we'll be talking about importance of agriculture. सबसे पहले हम बात करेंगे importance of agriculture की. What is the importance of agriculture in the Indian economy? Indian economy में agriculture का क्या importance है? These things are somewhere, some extra points have been added to such kind of headings so that you people will be able to understand all such things with in a very easy manner. So let's start with very first point, that is contribution to GDP. I think you all are aware of this fact that before independence till now, agriculture in Indian economy is having the dominance in case of contribution to not in contribution of GDP but contribution to employment. GDP पहले काफी ज्यादा था, अब थोड़ा बहुत कम हो गया है. और currently क्या situation है? I have already highlighted these points and you can see on the screen. So let's read it. Agriculture makes significant contribution to GDP in India. During the period of planning, contribution of agriculture sector to GDP had been ranging between 51 to 17.4%. There was a time जब contribution GDP में यानी income जो generate हुई है, that used to be 51% of total GDP. कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 51 रुपीज आपको एग्रीकल्चर से ही अर्न होते थे. It decreased to 17.4% in the after the independence. It has tended to decline over time. और अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये डिक्रीज ही होता जा रहा है, which is not a good thing. From as high as 51% in 1950 to 51, तो 51 से 51 को आप रिलेट कर सकते हैं. यहाँ पर दोनों ही 51 है कि 50 और 51 में ये 51% कंट्रीब्यूशन था. 2018 और 19 में ये कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होकर हो गया 14.4% ऑफ द जीडीपी. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जिस तरीके से मंदिर में अगर हम किसी दिन नहीं जाते तो हमारे जो फेद है वो भगवान में कम नहीं होता. लाइकवाइज इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, contribution of agriculture to the GDP declined over a period of time, it doesn't mean that the significance of agriculture declined. Agriculture का significance आज भी उतना ही है जितना पहले था. And if we are surviving, then that's only because of agricultural sector. It often occurs owing to relatively. अब ऐसा क्यों हुआ कि बाकी सेक्टर्स आगे निकल गए और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे निकल गया? तो आई एम अंडरलाइनिंग some of the things over here. कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बट हमारे ओपोनेंट्स जो हैं वो हमसे भी अच्छा करते हैं और वो हमसे भी आगे निकल जाते हैं. तो यही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के साथ हुआ कि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर काफी आगे निकल गए. द ग्रोथ वाज रिलेटिवली फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड दैट इज व्हाई जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर का कम हो गया एंड सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का बहुत ज्यादा हो गया. दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेज गुड्स? वेज गुड्स आर बेसिकली द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. वेज गुड्स को बोलते हैं जो नेसेसिटीज होती है हमारी लाइफ की, सच एज व्हीट हम खाते हैं, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा वगैरह हम लोग नहीं खाते. राजस्थान की तरफ काफी प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में कंज्यूम भी किया जाता है जिस तरीके से हम मेज वगैरह कंज्यूम करते हैं. Oil seeds are also there. So all these items, all these goods are basically wage goods. So agriculture is the sector which is providing us all such kind of goods. ये agriculture sector ही है जो हमें सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है. Agriculture provides wage goods to the 131 करोड़. आज के टाइम में वैसे तो हम लोग 137 करोड़ हो चुके हैं, बट क्योंकि अभी सेंसस ऑफ इंडिया होने वाला है
तो 131 करोड़ आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। So it ranges between 135 to 137 crore of population। तो उनको एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वेज गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, मुझे प्रोवाइड कर रहा है। एंड वेज गुड्स इज बेसिकली दीज रेफर्स टू द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, व्हीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स, ये सारे वेज गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। Whenever you want, whatever slide on whichever slide we are, if you want to make your notes, you can take the screenshot and you can save them with you so that you people will not face any kind of problem later on. Another thing is that you people are able to see that particular thing, that most of the people are working in the field। ये इंडिया का तो ऑब्वियसली नहीं है, बाहर का है, बट रेफरेंस के लिए, बिकॉज you people get a clear idea with the help of pictures rather than the explanation। so मैंने I have tried hard to bring out such kind of pictures, related pictures on such kind of slides। So you can see the very third point, if we talk about importance of agriculture, source of employment। और कमाल की बात ये है, since like before independence till now, agriculture sector is that sector which is having the dominance over all these sectors। आज भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, वैसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि 48%, बट बोलने में ऐसा आता है कि अराउंड 50% पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर आज भी। इवन दो ये रेशियो अगर हम और दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन करें तो वहां पर 2%, 4% इसी तरीके से मिलेगा। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओवर 50% of working population in India is engaged in agriculture sector only, implying that agriculture is the principal source of subsistence for the people in India। So जितने भी लोग इंडिया में हैं, it is providing them subsistence। Subsistence means the goods and services which they require for their survival। मार्केटिंग की बात मैं बाद में करूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात बाद में करूंगा। सर्वाइवल जो है लोगों का, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज शायद वो सर्वाइवल ना हो पाए, बिकॉज द अदर इंडस्ट्रीज आर नॉट हैविंग दैट मच रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। तो आज भी काफी सारे लोग एग्रीकल्चर में ही इंगेज्ड हैं। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई भी होती है, यहीं से हमें मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलती है। एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अब ऑब्वियसली ये मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स नॉट दी लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर ओनली। ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये तीनों के तीनों सेक्टर्स। चाहे मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं, प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी टर्शरी पे डिपेंड करता है, टर्शरी प्राइमरी पे डिपेंड करता है, और प्राइमरी सेकेंडरी पे डिपेंड करता है, प्राइमरी टर्शरी पे भी डिपेंड करता है। तो इंटरडिपेंडेंस है। इन योर 10th क्लास आपने इसे पढ़ा होगा, समझा होगा। कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करने के लिए कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है। दैट रॉ मटेरियल इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। सीड्स वगैरह जो हैं ऑयल इंडस्ट्री में, वो सारे एग्रीकल्चर से आते हैं। शुगर केन फॉर शुगर मिल एग्रीकल्चर से आता है। सो एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है प्राइमरी सेक्टर का, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Here we are talking about importance of agriculture, so we are putting agriculture sector in the limelight, primary sector in the limelight, कि ये है तो बाकी है, वरना कुछ भी नहीं है। So agriculture sector is of primary significance for the growth of the industrial sector in the economy। Industrial sector का अगर growth हो रहा है तो no doubt the raw material is basically provided by the agriculture sector only। The next point is source ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, ये मैंने इमेज में दिखाए हुए हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सो बेसिकली दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सो अगेन वी आर पुटिंग एग्रीकल्चर इन द लाइमलाइट एंड वी आर सेइंग कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता तो ये कौन खरीदता। Even though industries are not only engaged in the tractor, harvester and such kind of manufacturing of such kind of products only, और भी काफी सारी चीजों में है,
बट क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं विल बी टॉकिंग अबाउट देम। So agriculture sector is an important source of demand for industrial goods. Industrial goods की demand करता है ये, particularly capital goods like tractors, harvesters, threshers. Such kind of machines are demanded exclusively by agriculture sector. Thus agricultural prosperity, अगर agriculture sector prosper होगा so it will provide more raw material to the industrial sector. It will require more capital goods. So it will lead to the prosperity of industrial sector as well. तो अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉस्पर होता है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी प्रॉस्पर होगा. This is the consequence of this point. The next point is contribution to international trade. And आपको पता है काफी सारी चीजें होती हैं जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं. काफी सारी चीजें आप देख रहे हैं, स्पाइसेस के लिए तो हम लोग फेमस हैं. So if I talk about that, international trade, then agriculture makes a significant contribution to India's international trade. Thus in 2018 and 19, share of agricultural sector in total export of country stood at 11.76%, यानी कि almost 12% contribution agriculture sector करता है. India exports tea, jute, cashew nuts, cotton, tobacco, coffee, spices, etc. ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. Exports are a source of foreign exchange. Now ये थोड़ा सा मैं explain कर देता हूँ. What do you mean by foreign exchange? There is a specific chapter in macroeconomics called in the 5th unit called foreign exchange and BOP. Currencies of other countries. Other currencies except Indian rupee. ये साइन ही लगा देते हैं. इंडियन रुपी के अलावा जितनी भी करेंसीज होती हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. Whenever we sell goods in the international market, we get something in return, the foreign currencies, and that's what we call foreign exchange. किसी भी इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी जो है, जिस तरीके से हम लोग एक पिगी बैंक मेंटेन करते हैं, एक गुल्लक मेंटेन करते हैं, in the same manner the economy makes a reserve called foreign exchange reserve. तो वहां पर ये सारी चीजें रखी जाती हैं, which India needs for the import of defense goods as well as crude oil. और इंडिया में ये ध्यान रख लीजिए, दिस इज अ पॉइंट वर्थ नोटिसिंग. इंडिया में जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन चला जाता है इंपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स में, और इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यानी कि क्रूड ऑयल में, वो हम लोग मंगवाते हैं. सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारा उसी पे खर्च होता है. तो जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा हमारे पास उतनी ही अच्छी बात होगी. 1991 में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से हमें एलपीजी पॉलिसी लेके आनी पड़ी थी. $7 बिलियन हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बोरो किए थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एंड सरदार मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम. तो ये भी डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में. अभी इसकी बात कर लेते हैं. कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड. अब आपको पता है कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ही गुड्स नहीं बिकते हैं. We also require such kind of commodities. So agriculture also plays a significant role in countries' domestic trade. This is borne out by the fact that huge expenditure in India is incurred on the purchase of farm products needed by you, needed by me, or more than a billion people like us in the country. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं, लाइक राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट यू पीपल आर टेकिंग माय सर्विसेज. आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं और यू आर मेकिंग सम पेमेंट हियर. आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कुछ वहां पे परचेज करते हैं. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप यहाँ पर कह सकते हैं. फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव understood the macroeconomics first chapter, circular flow of income. तो इस सर्कल में सारी चीजें चलती रहती हैं. We purchase the farm goods from the farmers, from the shops, and they get the return, then they again produce, then we again get some income. ये सारा फ्लो चलता रहता है. तो it contributes to the domestic trade as well. Domestically जितना ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. दिस इज द कंक्लूजन. Support to transport industry.
I hope you must have not forgot about the source, source of goods from the, you can say, industrial sector. वहां पर हमें जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो सोर्स ऑफ डिमांड होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन agriculture sector. So pay attention. Agriculture in India offers a crucial support to the transport industry. Both railways and roadways are the bulk carriers of farm products in India. जैसे देखिए यहाँ पर ये फार्मर है, फार्मर से इंडस्ट्रीज तक गया, इंडस्ट्रीज से फिर इकट्ठा हुआ, उसके बाद ये शॉप्स तक गया, होलसेलर तक गया और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा। इन सारी चीजों में हमें जो रिक्वायरमेंट हुई है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की हुई है। अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो आप क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, आई मीन टू से क्या ट्रांसपोर्ट करोगे, नॉट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी आपको ये सारी की सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फार्मर से लेके जब पोर्ट्स तक आप जाते हैं, फार्मर से लेके जब आप होलसेलर्स तक जाते हैं, यू विल रिक्वायर transport facilities, and agriculture sector is somewhere giving such kind of opportunities to the transport industry, implying that agriculture is a significant source of demand for the transport industry. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो एक सोर्स ऑफ डिमांड है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी। अर्लियर वी हैड डिस्कस द सेम पॉइंट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। I hope so you people are getting all such points and you are not facing any kind of issue over here. In case you are having any problem, you can write in the comment section as well, all of you. The last point is wealth of the nation. ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारा वेल्थ ऑफ द नेशन है। कैसे वेल्थ ऑफ द नेशन है? A significant component of the country's wealth belongs to the agriculture sector. कैसे? In terms of fixed assets, आपकी काफी सारी assets हैं जो एग्रीकल्चर में है। लैंड आपकी फिक्स्ड एसेट है जो एग्रीकल्चर में है, which occupies the highest rank in India. Besides, capital worth crores of rupees stays invested in major and minor irrigation projects. Tractor, threshers, harvesters, ये भी आपकी एसेट्स हैं, even though they depreciate over a period of time, depreciate होती रहती हैं, लेकिन एसेट्स तो ये भी आपकी हैं। तो इस तरीके से आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है। आप इसके सिग्निफिकेंस को नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। सो दीज आर द पॉइंटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ इंपॉर्टेंस है, किस किस सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई। एंड आई होप सो यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई इशू है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे कोई इशू मुझे नहीं लगता कि आपको होगा। सो यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।